बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। 8 साल पहले एक लावारिस सूटकेस और उसके अंदर मिली एक युवती की लाश। इस खौफनाक वारदात ने पूरे दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया था। अब इस बहुचर्चित शिल्पा अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी बैंक मैनेजर राजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सनसनीखेज मामला 15 फरवरी 2018 का है। दुर्गापुर के बेनाचित्ती स्थित रूपाली अपार्टमेंट के बाहर एक संदिग्ध सूटकेस मिलने पर पुलिस ने उसे खोला तो अंदर 28 वर्षीय शिल्पा अग्रवाल का सड़ा गला शव मिला। शिल्पा बांकुड़ा जिले के मेजिया की रहने वाली थी और स्टेट बैंक की मेजिया शाखा में बैंक मित्र के रूप में कार्यरत थी। उसी शाखा के प्रबंधक राजीव कुमार पर हत्या का आरोप लगा। जांच में सामने आया कि शिल्पा अचानक लापता हो गई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर राजीव कुमार को गिरफ्तार किया। अभियोजन के अनुसार हत्या के बाद शव को फ्रिज में छुपाकर रखा गया और बाद में उसे सूटकेस में भरकर अपार्टमेंट के बाहर फेंक दिया गया ताकि सबूत मिटाए जा सके। करीब 8 वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में 21 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक साक्ष्य पेश किए गए। सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रशांत चौधरी की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता देवव्रत साई ने कहा कि सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। वहीं लंबे इंतजार के बाद आए इस निर्णय से शिल्पा अग्रवाल के परिवार में राहत और संतोष व्यक्त किया है। 8 বছর আগে সম্ভবত डेटा এই মুহূর্তে 11 তারিখ ছিল, 14ই ফেব্রুয়ারি কেসটা স্টার্ট হয়েছিল। 15ই ফেব্রুয়ারি 2018 কেসটা স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু তার আগেও 9ই ফেব্রুয়ারি 2018 থেকে এই যে ভিকটিম শিল্পা আগরওয়াল বাড়ির থেকে নিখোঁজ ছিল। তো অ্যাকর্ডিংলি ওরা মেজিয়া থানাতে ভাই একটা জিডি করে এবং বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করার পর দুর্গাপুর থানা থেকে 15ই ফেব্রুয়ারি 2018-তে একটা মেসেজ যায় ওদের কাছে যে এখানে যে রূপালী অ্যাপার্টমেন্ট আছে সেই অ্যাপার্টমেন্টটা ওরা আসে এবং আসার পরে ওরা আইডেন্টিফাই করে এবং ওরা একটা কমপ্লেন করে। অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট কমপ্লেন প্রাইভেট ফেসি ইনভেস্টিগেশন হয়। ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরে কেস স্টার্ট হওয়ার পরে এই রাজীব কুমারকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং এরা যে অভিযোগটা করেছিল সেখানে রাজীব কুমারের স্ত্রীর নামেও অভিযোগ ছিল প্রাথমিক ক্ষেত্রে প্রাইমারি। পরবর্তী ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন করার পরে রাজীব কুমারের স্ত্রীকে চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তার নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। অ্যাকর্ডিংলি ট্রায়াল শুরু হয়, চার্জ ফ্রেম হওয়ার পরে ট্রায়াল শুরু হয়। আমরা প্রায় 20 জন সাক্ষীকে তাদের সাক্ষী নেওয়া হয়, তাদের এক্সামিনেশন ক্রস এক্সামিনেশন হয়। অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট যে সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরি হয়েছিল কোর্ট সেই সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকে সামনে রেখে, সমস্ত সার্কামস্টান্সিয়াল এভিডেন্সকে সামনে রেখে, ফরেন্সিক রিপোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুকে সামনে রেখে গতকাল কনভিকশন দেন। সাজা আজকে ঘোষণা হয়েছে, তাকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়েছে। না মানে ফাঁসি হলে ভালো হতো, আমার ফাঁসি সাজা শোনালে ভালো হতো স্যার। আমার ভিতরে তারপরে কাঁদছে, বোনকে তর্পে মেয়েছি যাবে না, ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। আর এটা 8 বছর পরে ইয়ে করছে, 8 বছর আমার যাওয়া আসা করতে করতে আমার ভিতরটা জ্বলছে। 8 বছর থেকে একই রকম আমি পড়ে আছি।
মায়ের শরীর খারাপ, আমি আর হ্যান্ডিক্যাপ, আমরা যাওয়া আসা করতে পারছি না, কোনো আমার ব্যবস্থা কিছু নেই। আমাদের কি কষ্টে আমরা কাজ করছি আমরা নিজেরাই জানি। আপনি আর আপনার বোন মিলেই তো ব্যাংকের কাজ করতে। হ্যাঁ। এখন কি অবস্থা, এখন কি করেন? এখন কিছু করি না, ঘরে বসে আছি। ব্যাংকের কাজটা আর পাননি? না, ব্যাংকের সাথে কথা বলেছিলেন? ব্যাংকের সাথে কথা বলছি, কুকুরের মতন তারা দিচ্ছে, ব্যাংকে ঢুকো না, ব্যাংকে ঢুকা বন্ধ আমাদের। এই তো মেজর ব্যাংকের যে ম্যানেজারগুলো পাঠিয়েছে সব কুকুরের মতন আমাদেরকে ঝাড়তে আরম্ভ করেছে, যাও তোমাদের এখানে কোনো দরকার নেই। এখন যাচ্ছি, এখন বলছে হবে নাই, আর বাকি অন্য লোককে দেওয়া হচ্ছে, নতুন নতুন কোড চালু হচ্ছে, কিন্তু আমার কোডটা হবে না। এই যে রাজীব কুমারকে যাবজ্জীবন সাজা দিল, হ্যাঁ, আপনি এটাতে কি বলবেন? এটা ফাঁসি হলে ভালো হতো। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को हेलीकॉप्टर से अंडाल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत विधायक जितेंद्र तिवारी, विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी, चंद्रशेखर बैनर्जी समेत भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। एयरपोर्ट पर शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय नेताओं के साथ कुछ देर बातचीत की और विभिन्न संगठनात्मक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद वो सड़क मार्ग से बांकुड़ा के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, जबकि एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। काली पहाड़ी के बोकबंदी स्थित एक निजी कारखाने में काम के दौरान करंट लगने से 38 वर्षीय मजदूर मुन्ना उर्फ मुन्ना साव की मौत हो गई। हादसा सोमवार शाम बारिश के दौरान हुआ। गंभीर रूप से घायल मजदूर को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों, अस्थायी लोगों और कारखाने के कर्मचारियों ने कारखाने के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तथा श्रमिकों की
सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मजदूरों का आरोप है कि कारखाना परिसर में खुले बिजली के तार पड़े थे, जिसकी शिकायत पहले भी प्रबंधन से की गई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका यह भी आरोप है कि कर्मचारियों को ईएसआई और पीएफ जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं भाजपा नेताओं ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिवार के प्रति समर्थन जताया और उचित मुआवजे की मांग की। समाचार लिखे जाने तक कारखाना प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। यहाँ पे कल शाम को बारिश के समय में मेरे चाचा यहाँ स्टील फर्नीचर शॉप में काम करते थे। उनको अर्थिंग से या इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से उनका देहांत हो गया है। तो फैक्ट्री वाला लोग नेगोशिएट करने के लिए उनके छोटे छोटे जो दो बच्चे हैं उनके लिए तो कुछ करेंगे ना। अभी तक कोई यहाँ पे बोलने, ज़मीन ओनर भी नहीं आया, फैक्ट्री ओनर भी नहीं आया। एक कोई अपना ठेकेदार को भेज दिए हैं, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। उनसे क्या बात करें, उससे कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। उनका खुद ही तबीयत बिगड़ जा रहा है, उनसे क्या बात करें। इसे नेगोशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये इलाका को सील किए हैं। तो किस चीज़ का कारखाना था, किस में काम करते थे? स्टील फर्नीचर शॉप में काम करते थे। क्या नाम था उनका? मन्ना साहब। तो क्या आप लोग का डिमांड है? डिमांड है जो लड़के के लिए कुछ कर सकते हैं वो लोग बेहतर, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेहतर कर सके वो लोग के लाइफ के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। उनका तो रोजी रोजगार सभी चला गया। उसका मम्मी खुद ही दमा का पेशेंट है, वो कहाँ काम करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। सब 4 दिन तक सब अपना रहता है, उसके बाद सब अलग हो जाता है। उनके लिए तो कुछ व्यवस्था कर देना होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं सब। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग कुछ ही नहीं बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं बॉडी फैक्ट्री के सामने ला कर रखे? जी हाँ, हम लोग बॉडी फैक्ट्री के, जब तक नेगोशिएट नहीं होगा तब तक बॉडी यहीं रहेगा, हम लोग भी यहीं रहेंगे। हम लोग यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय साव। आसनसोल जिला अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए वार्ड संख्या 29 के भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता के नेतृत्व में आसधार स्थित है भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक जितेंद्र तिवारी, विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी, भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। शिविर की शुरुआत हूल दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। अतिथियों ने रक्तदान शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज सेवा की महत्वपूर्ण पहल बताया। इस अवसर पर भाजपा नेता किशोर कुशवाहा, सौरभ गुप्ता, राहुल पासवान, डॉक्टर CN प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। অত্যন্ত সাধু উদ্যোগ এবং এটাই প্রথমবার তা নয়। ঘুমাদার নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের ব্যানারে এই ধরনের কর্মসূচি বহু বছর ধরে চলছে এবং শুধুমাত্র আসানসোলে হচ্ছে তা নয়, আসানসোলের বাইরে গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে এই ধরনের কর্মসূচি হচ্ছে এবং বড় ভলিউমে এই ধরনের কর্মসূচি হচ্ছে। আমি জানতে পারলাম যে বর্ধমান জেলার কোনো একটা জায়গাতে ভাতারে শ্যামসুন্দরে একদিনে 1000 ডোনার রক্ত দিয়েছেন, ওনাদের উদ্যোগে ওনারা ব্যবস্থা করেছেন। তো এই ধরনের সাধু উদ্যোগ, এটা একটা মেসেজ গোটা সমাজের কাছে যে পশ্চিমবঙ্গ যদি পরিবর্তন আনতে হয়, জনসমাজ মানে জনমানসের মধ্যে যদি পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে সেবার ভাব তাদের মধ্যে জাগাতে হবে। এবং যে উদ্যোগ উমাদার নেতৃত্বে এই সংগঠন নিচ্ছে সেই উদ্যোগের মাধ্যমে যুব সমাজ আরও এগিয়ে আসুক, সেবামূলক কাজে তারা অংশগ্রহণ করুক। গোটা পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন হবে। মানুষ পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন চেয়েছিল এবং সেই জন্যই মানুষ নির্বাচনে সেভাবে ভোট দিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতির মাধ্যমে ইচ্ছিত পরিবর্তন আসে না। সমাজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের পরিবর্তনের জন্য, পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য এগিয়ে আসতে হয়। তো এই ধরনের সেবামূলক উদ্যোগ আরও বেশি করে হোক এবং সাধারণ মানুষ তাদের মনের মধ্যে যে সুপ্ত অবস্থাতে একটা স্বেচ্ছায় সেবা করার মানসিকতা রয়েছে তারা তাদের সুযোগ পাক, তারা এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুক। এটা সমাজের সামনে একটা বিরাট বড় মোটিভেশন। এই ধরনের কর্মসূচির আরও সাফল্য এবং এর ব্যাপ্তি কামনা করছি। যারা রক্তদাতা তাদের বিষয়ে কি বার্তা দেবেন? যারা রক্তদাতা তারা তো আজকের দিনের স্টার, আজকে তারাই মেন। তারা রক্ত দিচ্ছেন, আমরা এখানে ভাষণ দিচ্ছি, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। অ্যাকশান সবসময়তেই ভাষণের চেয়ে, শব্দের চেয়ে লাউডার মেসেজ দেয়। তো যারা রক্ত দিচ্ছেন
সেটাই একটা বিরাট বড় মেসেজ সমাজের কাছে। আমরা তো তাদের কথা জাস্ট সামনে তুলে ধরছি। दुर्गापुर में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन पर काम करने के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तम घोष के रूप में हुई है, जो इस्पात पल्ली के निवासी थे। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात ए जोन स्थित खोदीराम मैदान के पास हाई टेंशन लाइन पर सेफ्टी बेल्ट बांधकर काम करते समय हादसा हुआ। घटना के बाद दमकल कर्मियों ने उन्हें नीचे उतारकर दुर्गापुर महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह मृतक के परिजन, सहकर्मी और श्रमिक संगठनों के सदस्य डीएसपी अस्पताल के सामने प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी और उचित आर्थिक मुआवजा देने की मांग की। ঘটনাটা কালকে হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি আমি গাড়িতে বসছিলাম, ঠিক আছে। ওরা উপরে মেন লাইনের উপরে কাজ করছিল, ঠিক আছে। তো লাইন অফ করে তারা কাজ করছিল। তো কাজ করার পর আমি যখন গাড়িতে বসেছি একজন ডাকতে এলো যে দাদা এই ব্যাপার ঝুলছে কী ব্যাপার, গিয়ে দেখলাম হ্যাঁ ও তো দড়ি বেঁধে পুরো নিচে ওই উপরে ঝুলছে। তারপর আবার তো অফিসার থেকে ফোন করা হলো, অফিসারে এলো, ফায়ার ব্রিগেড ফোন করলো, ফায়ার ব্রিগেড এলো, বসে আমার কি মনে হচ্ছে বাজ পড়েই কি এটা ঘটেছে? আমার তো মনে হচ্ছে বাজি পড়ে। এমনি যদি 11,000 লাইনে যদি পড়তো তারা তো সমস্ত পুরো জ্বলে যেত, জ্বলে যেত। কি হয়েছিল বলতে বলো? বলছিলাম যে কালকে আমরা একটা কাজে গেছিলাম, ঠিক আছে। কোথায়? ওইটা হলো আপনার যে ক্ষুদিরাম মাঠ আছে, ক্ষুদিরাম মাঠের পেছনে। তো ওখানে কাজ হচ্ছিল, আমি যে গাড়িতে বসছি, তো একজন এলো বলে দাদা একদম তিনটা ঝুলছে, ঠিক আছে। আর আমাদের লাইন অফ ছাড়া তো কাজ হয় না, আর 11,000 লাইনে অফ না কোথাও উঠতে পারে না। তো যে একবার মানে বাজি পড়েছে। তখন কি বৃষ্টি পড়ছিল? হ্যাঁ তখন বৃষ্টি পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে কাজে উঠলো কেন? কন্ট্রাক্টর ছিল না ওখানে? কন্ট্রাক্টর ছিল না। তোমার নাম? আমার নাম হেমন্ত বাবু। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल में कोयला मजदूरों के वेतन समझौते NCW-12 को लागू करने, बालू चोरी रोकने और खदानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सीटू से संबंध CMSI ने ECL के सोदपुर एरिया कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में माकपा केंद्रीय समिति की सदस्य एवं सीटू नेता मीनाक्षी मुखर्जी और CMSI के महासचिव मनोज दत्ता शामिल हुए। मीनाक्षी मुखर्जी ने आरोप लगाया कि समय पर वेतन समझौता लागू नहीं किया जा रहा है और केंद्र सरकार के श्रम संहिता लेबर कोड के जरिए मजदूरों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। वहीं मनोज दत्ता ने कहा कि खदानों में बालू भराई नहीं होने से धसान का खतरा बढ़ रहा है और मजदूरों की सुरक्षा खतरे में है। सीटू ने मांग की कि JBCCI समिति का तत्काल गठन कर NCW-12 वेतन समझौता लागू किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर कोयला मजदूर 100% हड़ताल पर जाएंगे। साथ ही सितंबर तक समाधान नहीं होने पर ECL मुख्यालय में बड़ा आंदोलन और उसके बाद रानीगंज से राजारहाट स्थित कोल इंडिया मुख्यालय तक पदयात्रा की घोषणा की गई। বেতন বোর্ড লাগু করার জন্য সময় পার হয়ে গেছে, 5 বছর অন্তর হয়। সেটার দাবিতেই গোটা এই কয়লা শিল্প অঞ্চল জুড়ে CI2 নেতৃত্বে এই কাজ চলছে, কর্মসূচি চলছে। ম্যানেজমেন্টের কাছে দাবিপত্র পেশ করা চলছে। আগামী দিনে কি কর্মসূচি রয়েছে? কয়লা শিল্পকে বাঁচানো, চুরি বন্ধ করা, শ্রমিকদেরকে বাঁচানো এবং এই যেভাবে শ্রম কোড আইনকে এরা লাগু করতে চাইছে এবং শ্রম কোড আইনের দ্বারা শিল্পকে এবং শিল্প শ্রমিককে যেভাবে এরা মারতে চাইছে তার বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠন CI2 CMSI লড়ছে। সেই লড়াইয়েরই অংশ হিসাবে এটা চলছে।
कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए चीनाकोड़ी रोड स्थित सोदपुर महाप्रबंधक कार्यालय और एजी चर्च स्कूल के पास लंबे समय से जर्जर एवं दुर्घटनाओं का कारण बने जल निकासी नाले का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। भाजपा के आसनसोल जिला पश्चिम मीडिया प्रभारी संतोष कुमार वर्मा उर्फ टिंकू ने कहा कि मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार के नेतृत्व में कुल्टी में सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनाकोड़ी रोड का ये कार्य भी लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भाजपा लीगल सेल के सदस्य एवं अधिवक्ता विनोद सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान ये दर्शाता है कि वर्तमान नेतृत्व आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। वहीं भारतीय मजदूर संघ BMS के प्रतिनिधि गोविंद माझी ने बताया कि ये मामला लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में राहत और खुशी का माहौल है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।